लोग बहुत झूठे ब्रो, लाइक पीपल आर लायर्स, लाइक ह्यूमंस जो सोचते हैं ना, जो असली में है वो नहीं बाहर प्रोजेक्ट करते हैं. मान लो कि दिस इज गॉड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एक पार्ट ईच ह्यूमन है, ईच ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ इट. या हम लोग जो भी सोचते हैं करते हैं वगैरह, इट गोज बैक टू इट. ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करते करते लोगों को बहुत त्रास हो जाता है. यूएस में वो सब इश्यू नहीं है. हर स्टेट में घुसने के पहले एक बार टैक्स भरना पड़ेगा. अगर चीजें अच्छे होते हैं ना तो लोग प्रेस करते हैं. लोगों में क्षमता नहीं है फेलियर देखने का. लोग ना हेट इसके लिए करते हैं, या फिर मतलब तुमको पुल डाउन इसके लिए करते हैं. पेरेंट्स हो गया, कोई भी होगा दुनिया में, वो लोग तभी पुल डाउन करते हैं क्योंकि उनमें क्षमता नहीं है कि तुम्हें फेल होते हुए देखने का. हम लोग अपने आप को बहुत लिमिट कर देते हैं सोसाइटी के बैरियर्स से, वॉल्स. एंड वो परमिशनलेस वाला जो माइंडसेट है ना, इट ब्रेक्स दोस चेन्स. काशीपुर वाला जो वीडियो है, इट इज वेरी शॉर्ट बट इट इज वेरी वेल रिटन. ठीक है, सो आई समवेयर फील दैट यू हैव यूज्ड द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम. जैसे व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, it is like immutable database, then public immutable database, and decentralized public immutable database. So that whole part, okay, was very very well structured. Okay, how did you, like, when did that happen, pura Kashipur wala, let's take scenario? Actually, the PR team was planning it from a very long time, but then it got shifted. I think it got shifted also once. So by the time then when we were doing it, I already had a lot of time in my hands to like go through the script again and like change it, this and that. But the fun fact is, they told me, like, everybody was telling me the speech was too short before I gave the speech, that it has to be at least 18 minutes and stuff like that. I said no, let's keep it short, 10 minute का रखते, 10 मिनट में देखते क्या होता है, and it worked out. Like, it's a good thing. I have not promoted it yet a lot. Or कब हुआ, like, was it in the last 2-3 months? Yeah, it happened, like, I think it was January, around that time. January, December. I'm not sure exactly which this, but yeah, in this year, 2023 mostly. Amazing. This is like too good. So I actually had a chance to go through what your life has been. Okay, I have a fair idea कहाँ से आए हो, क्या किए हो. Okay, but I'd love to know from you. And let's start from the beginning. I've known कि you have worked as a child as well. Okay, and there are phases. I guess every family goes through that, right? I myself have gone through that, so I wouldn't deny it. Okay, and I would want you to share from the beginning how Roshan became what he is now. I actually have a long way to go now, but even then, for like whatever success that I have, most of the kids who live in chawls and stuff like that, who come from a very low background, can look up to it. So I'll say that. So I'll share where was my beginning so people relate. So like the most sad part of my life was when we had to like go back and live below our means and like crazy below our means. So that was my life's like a very strong core memory. But also like the most core memory is that I had to go like back to our means and live below our means to a level where it was pathetic for normal people to actually understand how these things work. Like outside there is not much knowledge about the chawls and slums and stuff. It was not a slum, so it was not that bad. Acha. Not that bad. But like living in chawls and stuff like that in Mumbai, it's very difficult. It's like crammed and this and that. People around you are just, how do you say, just surviving on the paycheck. And if somebody gets a job, it's like a hype there. Correct. So in that place, it's difficult for you to even think of doing something outside the box. But since I was not part of there from the very
start. Like I was not actually started there, so I was already out of the box. So I was like, I don't understand these things. So slowly, started getting into a lot of things. Computers happened because I had a lot of time in my hands and I really loved these things because I have ADHD. What happens is, when you have ADHD, you constantly want to do something, or you just like, or once your brain gets, how do you say it? It's like it's the computation becomes too high, you just sleep. So most of my life I've been like doing crazy things here and there and this and that. Now doing this, doing that, breaking somebody like car windows and घर का दरवाजा ये वो ठक ठक के भागो. I've been doing all these things. So when computers happened, I was like, okay, I can sit in one place. So my parents were also like, when they saw me like coding for the first time, they did not understand like what he's doing, but they were okay with it because एक जगह पे तो बैठ रहा है. So that was like their thing. तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया, slowly started coding, learned a lot of languages. फिर I learned like not only so I have a thing for languages. I learn language. मैं मराठी बोलू शकतो, मराठीमध्ये म्हणजे हिंदी में बोलता हूँ, मल्याळम में बात करता हूँ, मराठी वार्ता बोलू all this like गुजराती Oh पण बोलू wow. शके. हाँ, I have a thing, so I learned languages. So like पहले programming languages, then I thought that okay, this is very cool that you will be able to speak to people with it. So that there slowly, I understood like okay, we got gifts. like ऊपर वाले ने तोहफा देके भेजा है कुछ ना कुछ. So we'll use it for doing something better. So I started coding websites for people initially. Like I worked in a cyber cafe for some time, period of time. There I like got to meet a lot of people who understand the internet, who understand the computers. So I used to make games as well. I made Flappy Bird like before now it was famous. I had made a game like Flappy Bird in 3D in Unity. So that was like my first project for games, and I'd given it to like I made what 50,000 rupees. I gave it to one of these t-shirt companies. There I joined like a product manager. So that was like the start of how do you say business and coding, and I understood that okay, this thing can pay money well. So I've been promoting that for a very long time. What age was this? Well, how old were you? I was what 12, I think 12, 13. Okay, 12 and 13, and you started the business part. It was not like it. I'm telling you, like people don't realize this because they do not have ADHD. But when you have ADHD, it's like that is why like my screen time of my phone is also so high. It's sometimes it gets to a point where I am like, oh, bro, this is insane. I'm productive on the sides. At the same time, I am like constantly I have to do something. My brain constantly works. So it like so there is so much that so brain constantly thinks of things like constantly thinking of different things to do and this and that. And like because I have energy also, I kinda actually do those things. So business all this happened because I was like constantly thinking, okay, oh, okay, बेच के देखते क्या है, या फिर if I wanted to like go to a cyber cafe to like just play some games, I wanted money. So like where do I get money? I can't ask parents. So okay, वो ये बेच के देखते हैं, ऐसा हो जाएगा, इसका डिमांड है करके लिखते हैं. So that like all these things happened because it's like it is like a positive and a negative as well. It affects a lot of things other than like everything else. Like No, it does. yeah. Relationships are not like it's the worst kind of partner to have in a relationship. That's what my exes have been telling me. Correct. Not the current one. I'm not dating anyone right now. But like my exes have been telling that to me. Like, okay, fuck man. Okay. Started very early. You worked in, let's take a cafe, cyber cafe, and then you started working with a t-shirt business. Correct. Uske baad kya? Like, how did things go after that? So there I understood when I was with this t-shirt e-commerce company. I was a product manager. I was responsible for their entire e-commerce website and there these things. Set up it on WooCommerce and all these kind of things. I understood Amazon Marketplace, all these kind of things at a very young age. So I understood like okay, fuck, this is the future. Like if we believe that everything is going to improve from here, then 100% these people have a monopoly, as in like Amazon, Flipkart, all these kind of things. So I thought let's leverage it
And during that time, I was doing engineering as well, automobile engineering. So I'm like, okay, my education qualification is I am an automobile engineer, and I specialized in micro AI vehicle engineering. So self-driving cars. So this is, you start with automobile engineering, then you do self-driving cars, then you do micro self-driving cars. So micro self-driving cars could be these vehicles which go in petrol on the border, or like they can go to big large farms and like check what is the conditions there, these kind of things. So now I recently completed my flying autonomous car this also. Degree. Of course. Okay. Nano, these are like nice nano degree course. I like Udacity for these things because it's a very focused course and you have to actually finish the course to get the certificate and these kind of things. So I use that a lot to study. So now my education is like in that direction. But life did not want me to get into AI back then. So when like this thing happened, I understood like I got a like I was working with a nice after that, like as soon as my this is done, I got a nice internship for 6 months at one of the world's biggest organizations. But me being me, I could not. I actually did not stick to them after that. So 3 months I did here in India. 3 months I went to their US counterpart. Then I flew back here to start my own. So like this was the like I left my this product manager job at in here because I realized like I should be doing something more crazier. So when I flew back here, somebody approached me with a fidget spinner, and I was playing with it in there in the US because fidget spinners were a thing there for ADHD people, and I was 17 back then. I was not even 18. So when I flew back here, I realized that okay, fidget spinners can be a thing. And like somebody approached me with, can we sell this online? I told them yes, bro, why not? We had a 3D print. We actually don't have a 3D printer. The person who approached me had like a 3D printing farm. So there basically we used to print the 3D printers and sell it on eBay. But then that person was not that interested. I was still saw a lot of potential in it. But after a point he was not that interested in like doing the business, like business part of it very strong. So then I said that I'll do it. Then when I did it, it became like a phenomenon in the entire country. Everyone started playing with it. And uske No, we sold that. So then फिर है ना क्या होता है पता है, इंसान में इतना पैसा आता है ना तो उसको खुद को बहुत संत समझने लग जाता है कि मतलब either you become like if you see I don't drink, I don't smoke, I don't do these things. So मतलब अगर इफ यू डू दोज थिंग्स तो पूरा लाइफ उसमें चले जाता है, पैसा आता है तो। अगर वो नहीं करता है आदमी तो आदमी खुद को संत समझने लग जाता है कि मतलब मेरा जिंदगी है लोगों के खिदमत में, लोगों को दान करने में लाइफ मेरा है, अभी मैं सिर्फ दान करूंगा। तो एंड लाइक तो मैं दान तो नहीं करूंगा बट माय थिंकिंग वाज हाय ला Amazon, Flipkart is going to have a monopoly in this country. Oh my God. We need to bring the small businesses together, otherwise they are gone. Then Zomato, Swiggy are taking 28% cuts and this and that. I was like, oh my God, we need to bring small businesses together, otherwise they are gone. ऐसा सब करने का ऐसा मेरा thought process था. So I built Ablelo. That was before Zepto. Only Dunzo was a competitor there, and that was also not launched in Mumbai. I built Ablelo. Basically, you can buy and sell, like you can host your shops, and people can buy from your shops and get things in like 10 minutes or less. So we started it long back. okay. But then eventually, कैसे बोलते हैं, you die a hero or live long enough to become the villain. So when like COVID happened, so now I was trying my best कि ये लोगों को convince कराओ हम. So my co-founder was Jainish. He's now in Canada. He's doing his masters right now. But back then, he used to go to like every store and like convince them to come on board. And these pardon my French, but these fuckers are so difficult to deal with. Like they do not understand like how back then like how tech issue. Now they're disrupted. So now they have to like accept everything, and otherwise those who do not accept, they're like out of business. So back then it was so difficult to make them understand. Okay,
like these internet is real, bro. Mobile apps are real. People are going to order from it. You will miss out. Did not understand back then. So when COVID happened, something crazy happened. And I've been telling about people about like, okay, uh, something like COVID is going to happen because I know that like these people. So now, even now, if you look at things, I'll tell you like what is going to happen next. But even back then, I had enough clear signs that okay, something shit is going, some crazy shit is going to happen. So I used to keep telling people, okay, keep, come online, otherwise all comms will be lost. And when COVID happened, we were literally the ones who only had permission to sell essentials in Mumbai for like 3 weeks. Neither Amazon, neither Zomato, all these people did not have the necessary permissions to do it. We somehow managed to get it. And we had a monopoly like 3 weeks. We were getting our app downloads for like less than 10 pesos. So that was insane. So he was How do you say not it? to Zepto Insane because hyper. वो भी बॉम्बे में ही था. Zepto भी तो एक हाँ नहीं, जेप्टो नहीं था तभी. अच्छा तब तो when जेप्टो did नहीं था Zepto तब. come? जेप्टो बहुत बाद में आया. मैंने छोड़ दिया धंधा तब आया. Okay. हाँ, मैं आई लेफ्ट लाइक 2020 एंडिंग. आई वाज लाइक ब्रो मर जाएंगे धंधा करते करते. ये वाला धंधा मतलब बहुत ज्यादा ऑपरेशन है इसमें और बहुत बहुत स्ट्रेस है लक्ष्य ब्रो. मतलब ये बहुत क्विक कॉमर्स लोगों को लगता है. इसके लिए मैं मतलब मेरे को ऐसा कुछ हार्ड फीलिंग्स नहीं जाता ये आदित्य और वो कैबल को लेके. मतलब ठीक है ब्रो, गुड गुड. तब ऐसा करो करो, तुम लोग करो, बहुत मेहनत है इसमें. क्योंकि क्या है, बहुत थिन मार्जिन बिजनेस है ऊपर से. सो द बिगेस्ट पीपल डोंट रियलाइज, आई टेल यू द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द क्विक कॉमर्स मॉडल. ये लोगों को पता भी नहीं, लोग कुछ भी बोलते हैं. मैं बताता हूँ असली प्रॉब्लम, द रियल प्रॉब्लम. सो द रियल प्रॉब्लम इज दैट as soon as the order value increases for groceries, for anything, if it is not extremely branded gourmet products, the weight of the package increases. And there is a limited weight which a bichara this can carry, like a delivery boy can carry. He cannot carry more than like 12 kgs to, like, it's very difficult for him to carry. So for example, if you say that आधे घंटे के अंदर 2 डिलीवरी करना है, वो नहीं होता है अगर बड़ा पैकेज रहेगा. तो अगर एक इंसान है, मैं मेरे घर का ग्रोसरी मंगवा रहा हूँ, मैं तेल, शक्कर, राइस, बासमती राइस, मैगी, ये सब कुछ बना तो पैकेज इतना बड़ा हो जाता है और वो बेचारे लोग का बैग ही इतना सा रहता है. तो ये जो बीच का ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो वेट का, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और इसकी वजह से ऑर्डर वैल्यू बड़ा नहीं हो पाता. करेक्ट. तो ये सबसे मतलब डेफिनेटली प्रॉब्लम है. और इसका मतलब अभी चिंदी सॉल्यूशन है कि कस्टमर को रोक दो ये कितना वेट डालना है, मतलब एक ऑर्डर में कितना ये हो सकता है करके, क्वांटिटी या वेट हो सकता है करके. दैट इज हाउ लाइक अ बोलते हैं डक्ट टेप सॉल्यूशन टू दिस. ओके. बट मेरे को नहीं लगता आई विल गेट इनटू दिस बिजनेस. लाइक मेरा है, मेरे को यही बिजनेस करना है, मैं बाद में इसमें करने वाला हूँ. बट तब जब लाइक विल फिगर आउट व्हाट इज नॉट ड्रोन्स but autonomous RC vehicles which we can deliver. करेक्ट. उसका इंफ्रा आएगा ना तो मैं ये बिजनेस में ही घुसूंगा. जब तक वो इंसान चला के लेके जा रहा ना वो प्रोडक्ट, वो मेरे को नहीं करना. मेरे को नहीं लगता इंसान ज्यादा काम करना चाहिए अभी. लाइक humans should stop working, as in they should work, not like stop working. They'll like suicide if they stop working. I'm saying like stop doing a lot of menial jobs slowly, and humans will stop doing that eventually. They will like अभी ये जो मतलब लोग इतना AI का करते सब लोग, ब्रो मेरे को नहीं लगता है कोई भी सेन इंसान थोड़ा भी पढ़ा लिखा वो अपने गटर में घुसे गटर साफ करेगा इन द नेक्स्ट 5 years. नहीं करेगा. नहीं करेगा तो ये डिलीवरी वाले का भी काम नहीं करेगा. तो हाँ, तो ये अबलिलो हुआ, फिर कोविड के इसमें, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्या है ना, मेरे को आई नीड टू लर्न टू मैनेज कंपनीज इन स्केल. Like I can manage like how do you say it? अभी manage अभी Tripit Store was also like ऐसा बाहर मतलब वेबसाइट मतलब .com था, but inside it was like how do you say it, a factory. तो फैक्ट्री मैनेज करना डैड का बचपन में देखा है, सब कुछ है. और मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट नहीं रहा मेरे लिए वो. क्योंकि लोग क्या ये जैसे तुम लोग ना थोड़े से स्मार्ट लोग को इन्वॉल्व करने लग जाते हो ना, हाँ.
कोई भी तुम्हारे काम में कि मतलब थोड़े मतलब ऐसे है, तो वैसे वैसा वो डायनेमिक्स बहुत चेंज हो जाता है। तो बेसिकली मेरे को सीखना था कि स्केल कंपनीज कैसे मैनेज करते हैं। सो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला अहमदाबाद में एक कंपनी के साथ में। सो मैं इधर तो आई जॉइंड लाइक एज अ कंसल्टेंट। Okay. फिर देन इवेंचुअली आई बिकेम द सीटीओ। Okay. लाइक हाँ, 6 महीने में सीटीओ बन गया। फिर वैसे ही हुआ, फिर वैसे मुझे उधर था, मैं फिर उधर मैं उनको पेटेंट वेटेंट दिलाया वेब आरटीसी में। इसके अंदर आई रोट अ पेटेंट लाइक प्रोडक्ट फॉर देम, दैट गॉट अ पेटेंट एज वेल। इट्स इन वेब आरटीसी। सो वो हुआ, फिर मैं बोर हो गया, मैं बोला कि ये थोड़ा और बड़ा चाहिए। तभी मुझे ब्लॉकचेन ये सब का बहुत ये हुआ, मैं बोला कि ये क्रेजी है एकदम, ये करते कुछ तो इसमें मैं धंधा करने आगे मजा आएगा, क्योंकि अभी नहीं है, नेक्स्ट 5 years में बहुत फटने वाला। तो Right. मेरे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ये था। तो दुबई एक बेस्ड कंपनी ने मुझे अप्रोच किया, तो मैं इधर एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन किया पहले। फिर उसके बाद मैं अभी केम द वीपी ऑफ प्रोडक्ट, फिर उधर भी सीटीओ बन गया लास्ट में। फिर मैं सीटीओ बन गया दुबई में, तो फिर मैंने बोला कि मतलब अभी तो मतलब हो गया, बहुत पढ़ लिया, अभी ये सब 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 लोग को कुछ नहीं आता। मतलब किसी को भी लाइक एवरीवन इज जस्ट, इवन इन बिग कंपनीज एवरीबॉडी जस्ट फिगरिंग आउट स्टफ ऑन द फ्लाई, लाइक देयर इज नो वॉट एवर स्टैंडर्ड प्रोसेसेस दी, लाइक इसके लिए आई लाइक systems and processes a lot now, because I realized even that like things are so bad everywhere because things do not go as planned. These systems and how to say it, all this way of doing things actually help you sometimes to not like deviate so much. Otherwise, like humans are so unpredictable. Even the smallest variation that we do creates another reality. Like every time I do an action, a certain reality is being formed. So I'm giving like अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये बात मैं जब भी मैं कुछ बोल देता हूँ उसकी वजह से एक अलग रियलिटी फॉर्म होते जाता है। Correct. Correct. तो मतलब मेरे को हाँ, तभी मैं एकदम घुस गया इस सब में, मुझे समझ में आया उस शिट मतलब क्वांटम फिजिक्स कुछ रहता है। तो मैं साइड में थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ उसका, लाइक मैं उसका कुछ ऑफिशियल कोर्स नहीं अभी तक अच्छा, तो मैं कर लेता, बट अभी जो भी मतलब रिसर्च मिल सकता है मैं थोड़ा स्टडी करता। अभी मैं एकदम भगवान और लाइक कृष्णा ये सब में थोड़ा घुस गया, मुझे जब अंडरस्टैंडिंग हुआ, ओ माय गॉड ये इनसेन करके, मतलब ये सब एग्जिस्ट करता है दुनिया में। करता तो है मैं करता एकदम है. ऐसा समझ गया। फिर हाँ, देन आई फ्लू बैक टू इंडिया और फिर परमिशन लेस। Wow. That is I guess that is something, that was a calling. मेरे को लग रहा है. It's like you're made for something different and you have to come back to, let's take, your country to make things happen. तो इसीलिए. हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मोस्ट ऑफ आवर लाइफ, अगर जैसे अगर अपन काम पे देंगे ना, जिसके लिए मैंने अभी लाइक केरला में भी आके मैं अभी पूरा मैं मतलब अभी आई हैव टू बी, आई हैव नो अदर ऑप्शन, द एल्डर सन, मतलब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं इधर आया हूँ उनके साथ में। मुझे ऐसा लगता है ऐसे कि इंसान कहीं पे भी हो ना, अगर उसको जिंदा रहना ना एक पॉइंट के बाद में, ही हैज टू वर्क, लाइक मतलब कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ. नहीं तो आदमी मतलब अब मेरे को नहीं लगता अभी तो भाई, अभी तो चालू नहीं हुआ है सुइसाइड्स। जब से वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम और ये सब चालू हो जाएगा, तब इंसान का खाना पीना रहना सेक्स ये सब मिलना चालू हो जाएगा ना फुकट ऐसा, तो पूरा अक्खा दुनिया में फुफ फट जाएगा सब। अभी शायद यूएस लोग बोलेंगे थोड़ा थोड़ा. यूएस का हालत, फेंटेनिल और ये सब जो ड्रग्स है मतलब जॉम्बी बना देता आदमी को यार। ये सब चालू हो गया यूएस में, दूर नहीं है सब। इंडिया में मतलब इंडिया में एक ही अच्छा है कि इतना जगह है, मतलब वास्ट है कि ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करते करते लोगों को बहुत त्रास हो जाता। यूएस में वो सब इशू नहीं है। हर स्टेट में घुसने के पहले एक बार टैक्स भरना पड़ेगा. हाँ नसीब है भाई, जीएसटी आ गया, कितना अच्छा है पता है। वो मैं जब इसका करता था मैन्युफैक्चरिंग सबका, तब भाई वो आके हम लोग का बेयरिंग उतरता था उसका, ऑक्ट्रॉय भरो ये भरो वो भरो, बहुत त्रास देता था। लोगों को लगता है ना ये सब है ना, अक्षय आपको पता है क्या? अपना जो लॉस फॉर्म होता है ना कुछ भी, या कुछ भी ये सब कुछ होता है जब भी, अभी मैंने ना 5 साल तक मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया है कि तू मतलब मैं तेरे को वोट किया ना भाई, हाँ.
पक्का मतलब मैंने पूरा देश ने वोट किया है, सब कंसेंसस में आ गया अभी। भाई वो कुछ तो सोच के कर रहा है, देखा हाँ कैसा, फुकट तो नहीं करेगा। तेरे पास अगर देखो चेंज करना है तो तेरे पास अगला 5 साल है चेंज करने को। तेरे पास एक तो मेजोरिटी नहीं है, एक तो कुछ नहीं है, फिर चेंज भी करना है, तो मतलब नॉर्मल सिटीजन्स को यूज करके करना है सब, सब में सब गंदा हो जाता है। फिर अपना देश है ना, टाइम लगता है कुछ भी प्रोग्रेस को, क्योंकि किधर भी कुछ भी खड्डा खोदोगे ना, लाइक ऐसा कुछ डेवलपमेंट के लिए ऐसे खड्डे खोदते रहते हैं फुकट। पर अगर कुछ डेवलपमेंट के लिए जिसने खड्डा खोदा ना, ये 100 पीआई ला जाते इधर उधर से, एक और एक क्यों खड्डा खोद रहा है, वो ये रोको, ये इधर मेरा घर है क्या है? हाँ, सब बहुत वो प्रॉब्लम बहुत आता है, इंडिया में है, इंडिया में है। बहुत है। बट पूरा जर्नी से जो अभी तुमने शेयर किया आपने, मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, बट आई आस्क यू वन थिंग, डू यू एवर फील दैट you are like a Robin Hood to the new internet because you want to break things and make things more easily accessible for people? मतलब ऐसे कैसे बोलूं, ये सब एडजेक्टिव ये सब स्पीच विच में देने को अच्छा लगता है, पर इंटरनली तो इम्पोस्टर सिंड्रोम तो बहुत आते रहते हैं ऐसे कभी कभी। तो मतलब हाँ, मैं इंटरनली अच्छा, में सब अवॉइड करता हूँ खुद को, ये बोलना वो बोलना, क्योंकि फिर ऐसा बहुत, अगर चीजें अच्छे होते हैं ना तो लोग प्रेस करते हैं। राइट, लोगों में क्षमता नहीं है फेलियर देखने का। लोग मतलब मैंने रियलाइज किया, लोग ना हेट इसके लिए करते हैं, या फिर मतलब तुमको पुल डाउन इसके लिए करते हैं, पेरेंट्स हो गए या कोई भी होगा दुनिया में, वो लोग तभी पुल डाउन करते हैं क्योंकि उनमें क्षमता नहीं है कि तुम्हें फेल होते हुए देखने का। करेक्ट, क्योंकि उन्होंने इतने बार फेल हुए लाइफ में, तो उनको सब पैटर्न लगता है कि ये देख ऐसा करके। हाँ, वो लोग का ऐसा भरोसा नहीं कि तू है वो इंसान जो पैटर्न ब्रेक कर सकता है। करेक्ट, हाँ, हाँ, तो मैं ऐसा खुद को मतलब मैं बहुत प्रोजेक्शंस एडजेक्टिव्स में कम करता हूँ, बहुत मतलब मेरे को ऐसा एकदम स्टिक नहीं होने देता हूँ कुछ, मतलब हाँ, भाई क्योंकि मतलब मैं खुद को परमिशन लेस बोलता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रांड भी है, तो जितना मैं उसको बोलूंगा अपना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ब्रांड है, जितने बार में मैं बोलूंगा उतने बार अपना वो और फैल रहा हो तो मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं उसको ही मतलब वही एडजेक्टिव बना लिया, परमिशन लेस। नहीं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। बट इसी के साथ साथ आस्क यू एक और चीज, कभी जैसे बचपन से यू स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी यंग एज और बहुत कुछ ट्राई किया, ठीक है, और बहुत कुछ देखा भी है लाइफ में, ओके, फैमिली की तरफ से, काम की तरफ से, लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन बहुत कुछ देखा है। ऐसा क्या फीलिंग था हमेशा, या फिर क्या सोच था that kept you thinking that कुछ करना है, बस कुछ करना है, like you know you have that people like us, I guess we have that जुनून टाइप कि कुछ तो करना है, तो वो क्या है, उस स्टेट के बारे में थोड़ा बताओ। अभी यार आप एक्चुअली मैं बोला ना, लाइक वो एडीएचडी, मोस्ट 99% ऑल माई सक्सेस एंड फेलियर्स वो इसी चीज की वजह से, क्योंकि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करना होता है। लाइक पेशेंस तो नहीं है इंसान, मतलब पेशेंस हाँ, बहुत मिनिमम में, तो अनटिल लाइक खुद कुछ ना कुछ किए नहीं तो फिर गिल्ट फील होता है। तो मेरा मोस्टली वही हुआ है, क्योंकि मुझे अगर कुछ लगता है ना कि यार कितने स्टूपिड है लोग कि ये चीज नहीं कर रहे करके, ऐसा ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल लाइक मुझे ऐसा तब मुझे स्टूपिड लगता है कि अपने कंट्री का ई कॉमर्स का मोनोपोली फॉरेन कंपनीज के हाथ में। लाइक कितना स्टूपिड है वो चीज। कैसे? Amazon, फ्लिपकार्ट आर नॉट इंडियन कंपनीज, लाइक उनका बाहर है सब, लाइक दे आर एवरीथिंग, दे आर फॉरेन कंपनीज। इंडिया का एक कॉम्पिटिटर नहीं है जो स्टैंड कर सकता है, एक जन नहीं, एक हाँ, नहीं। फ्लिपकार्ट इज ओन बाय, इसके लिए राइट, नहीं है इंडियन कंपनी, दे नॉट इंडियन कंपनीज। तो मेरे को ऐसा लगता है, तो मेरे को वो स्टूपिड लगता था, इसके लिए मैंने वो किया, अबलिलो किया कि ये स्टूपिड है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ स्टूपिड है, अब ऐसे मेरे को परमिशन लेस इसके लिए, ब्रो बैंक्स बहुत स्टूपिड है। क्यों? लाइक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्टूपिड है, मतलब इफ यू गो डीप नो, मैंने बहुत स्टडी किया इसके लिए, मैं इसमें हूँ। इट्स लाइक बहुत ज्यादा प्रोसेसेस है इसके अंदर, और ये लोग जो टेक यूज कर रहे पीछे वो आर्केइक है। मैं चल बोल देता हूँ, VB.NET में बना हो, VB.NEट पता है ना लैंग्वेज, जुना विजुअल बेसिक डॉट हाँ, नेट, हाँ, हाँ, जो थर्ड क्लास मतलब लैंग्वेज वो मतलब बाबा आदम के जमाने में यूज करते थे, उसमें बना हो, और वो चला रहे ये लोग अभी तक।
तो उसका इसके लिए तो आज भी देखने को फनी है, सब बोलते हैं कि ये वाले डेवलपर्स को डिमांड है, उसका डिमांड है। बीबी डॉट नेट वालों को आज भी डिमांड है, डॉट नेट वाले आज भी कितने डिमांड में चल हाँ रहे हाँ हैं। इसकी वजह से डॉट वाले सी शार्प वाले अभी भी डिमांड में चल रहे वाले, क्योंकि उनको ये सब बैंकिंग इसमें वही यूज कर रहे हैं। और अपने लड़के लोग सब इधर बैठ के ये पढ़ के जा रहे, डीएसए वो सब कुछ करके जा रहे हैं, पर काम जाके उधर क्या कर रहे हैं वही। हाँ भाई, इसमें एक एक कंट्रोलर लिखने को साला पूरा दिन लग जाता है। ये तो है, ये तो है, ये तो मैंने देखा है, ये तो डिफरेंस है। तो इसके अभी ये एआई का भी मैं बोलता हूँ, मैं क्यों घुसा उसके अंदर। एक तो मतलब मैं ना ट्रेंड्स को छोड़ता नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद। मैं बहुत बाद में मेरे को खुद को बहुत ऐसा स्टूपिड फील होता है कि अगर मैं मेरे सामने कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ और मैंने नहीं किया हो, और वो हाथ से चला गया और कोई और कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या गधा हूं मैं। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, जब मेरे को कोई आइडिया आता है ना, तो यूजुअली वो कोई दुनिया में वो आइडिया आने के ऑलमोस्ट मतलब 3 महीने पहले आ जाता है। करेक्ट करेक्ट। या ऐसा भी नहीं शायद, वो यूजुअली किसी को ऑलरेडी वो मतलब मुझे जब में आइडिया आता है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग को आइडिया आता है वो। क्योंकि एक हाँ आइडिया का ना, हर आइडिया का एक टाइम होता है, एवरी आइडिया हैज अ टाइम। तो वो आइडिया का जब टाइम है ना, तो उसको एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। तो मैं वही देखता हूँ, जब भी मुझे कोई आइडिया आता है तो मुझे पता चलता है ओ शिट, ये आइडिया और किसी को आने वाला है, तो मेरे को पता है उससे पहले मेरे को करना ही पड़ेगा। एंड बिकॉज आई गॉड गिवन एबिलिटीज कोड करने का, ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग का, आर्किटेक्चर्स का, मैं बहुत जल्दी कर पाता हूँ। इसमें मतलब मेरा वो पूरा सक्सेस है ना लाइफ का, ये देखना आगे जाके भी जब मैं बिलियनर बन जाऊंगा तभी भी ना, तुम याद रखना एक चीज मैं बोला है, यही फैक्टर की वजह से ही हमेशा रहेगा कि मेरा जो आइडिया टू एग्जीक्यूशन का टाइम है ना, इधर अगर इतना स्ट्रेस में रहेगा ना, तो मैं हमेशा जीतते रहूंगा। जितना मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा, जितना मैं इसको करूंगा ना, और लंबा होता जाएगा। अगर जब मेरे को आइडिया आता है, अगर मैं इसको तब एग्जीक्यूट कर लूंगा, तो पता नहीं मैं क्या क्या कर दूंगा हाँ, इसमें। इस पे एक चीज भी है कि द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर दोस्त जिनका डिसीजन मेकिंग टाइम ज्यादा फास्ट है, जिनका डिसीजन मेकिंग से ज्यादा डिसीजन, हाँ, एग्जीक्यूशन टाइम बहुत हाँ फास्ट। सब लोग का मैं बोलूँ, इसका मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है कृणाल, क्रेटेक्स म्यूजिक जो है अभी मतलब वायरल फेमस हो गया अभी बहुत। अच्छा तो उसके, हाँ, उसका ये है वो चीज, सो फास्ट। मतलब वो एक रात में, अबे हाई क्वालिटी, हाँ, हाई क्वालिटी रात में बैठ के उसको दे दिया तो 5-6 गाने तो ऐसे बना देगा। अरे वाह फिर देखो सेलेक्ट करना है ना हाँ बेसिकली। हाँ जब तेरे पास इतने ऑप्शंस है, तो तेरे को टॉप क्वालिटी जो है, मतलब तेरे अगर तूने पढ़ाई किया हुआ है तो सिर्फ सेलेक्ट करना है, क्या चाहिए टॉप क्वालिटी है, वर्क कर रहा है करके हाँ ऐसा, फिर उसको डालना है। तो इतना अगर शॉट्स लेगा, हिट्स लेगा, दुनिया के अंदर कोई भी डार्ट बोर्ड में तू हिट लेगा ना, ऐसा बहुत बार वो एक तो गिरेगा ही जाके, वो गिर जाता है, वो गिर गया तो सक्सेस। नहीं वो तो है। अच्छा, देयर वाज अ फेज वेयर यू मेंशन कि कृष्णा वाला चीज बहुत ज्यादा चेंज लाया लाइफ में, ठीक है। तो एक बात तो आई अंडरस्टैंड कि यू बिलीव इन गॉड, ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी बिग चेंज, बट व्हाई डू यू बिलीव? मैं बताता हूँ। ले मेरा पूरा है, थियोरेटिकल है पूरा, मतलब इसमें कुछ भी, मतलब पूरे सेक्शन बुलशिट करके तुम लोग डिसमिस कर सकते हो, बट ये मैं थियोरी में लाइक एन ओवर थिंकिंग ब्रेन हैज अराइव्ड ऑन दिस कंक्लूजन। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अपन है ना एक एक्चुअल गेम के अंदर है, ओके और ये गेम है, लाइक वी आर एक्चुअली इन अ गेम। एंड मतलब इसका मोस्टली ओरिजिन ऐसा है कि अपन ने ये गेम खेल के इतने फाइनल लेवल पे ऐसा हो गया कि इतना ह्यूज हो गया अपन कि वी हैड टू सेंड लाइक स्मॉल गेम, मतलब अपना ही एलिमेंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि मतलब बोलते ना कि वो अलग अलग पार्ट्स में जाके वो छोड़ देना था, लाइक अपने जो सीड्स है, अपने जो इंसान का जो सीड है वो ठीक चीज, है वो छोड़ना था अलग अलग जगह पे जहाँ पे वो लाइफ सपोर्ट कर सकता है। एंड फिर गेम रिस्टार्ट होता है वापस, कि वो इंसान ह्यूमंस धीरे धीरे करके बढ़ते वापस ठीक इतना लेवल पे आ जाता है कि उसको वापस अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है और वापस छोड़ना पड़ता है। तो अपन है जो ह्यूमन से जो चीज है, वी आर पार्ट ऑफ समथिंग वेरी बिग। लाइक अपन है ना कुछ तो एक बहुत बड़े इसमें, कोई तो एक क्रेजी एडीएचडी का एक्सट्रीम वाला ब्रेन वाला कोई इंसान बैठा है उधर, कोई तो एक एंटिटी है जो है ना सिर्फ सोच रहा है कि अगला क्या करना है, और वो मरने रहा है, लोग उसको मारने रहे, वो कॉन्स्टेंटली पावर एक्यूमुलेट करते जा रहा है।
और वो सिर्फ कॉन्स्टेंटली सोच रहा है। तो मैंने जब मेरे लेवल पे आके सोचा, तो मैंने सोचा कि क्या मैं ये हो सकता हूँ, Okay. ये बंदा, क्या मैं बंदे से सोच सकता हूँ। तब मेरे को समझा कि अच्छा गॉड एग्जिस्ट करता है करके। तब मुझे समझा कि लाइक अच्छा, अगर ये माइक्रोजोम लेवल पे मैं हूँ, मैं इतना छोटा चीज हूँ पूरे यूनिवर्स में, अगर मेरे में ऐसे थॉट्स आ सकते कि मेरे पास अनलिमिटेड पावर होता और अगर मैं मरता नहीं तो मैं क्या करता, हाँ, तो क्या ये पहले किसी को आया नहीं रहेगा क्या? क्योंकि मेरे को जो आइडिया है तो बहुत लोग को आते हैं, वो पहले आया रहेगा ना किसी को। तो मेरे को क्लिक हुआ कि अच्छा, मतलब ये गेम बड़ा है, अपन छोड़। तो मेरे को ऐसा नहीं, you think God is guilty? नहीं जो भी है, बहुत फटे सोचता है वो, लाइक मतलब बहुत बहुत मतलब बहुत सोचता है, तो फॉर श्योर है, लाइक बहुत सोचता है 100%। मैं लिख के दे सकता हूँ, लाइक गॉड थिंक्स अ लॉट ब्रो। So मैं बताता हूँ, there is मतलब जैसे एक फिलोसफी मैंने कहीं तो पढ़ी थी। इट्स बेसिकली मान लो कि दिस इज गॉड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एक पार्ट ईच ह्यूमन है, ईच ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ इट। मैं उसमें आता हूँ, मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली बताता हूँ हाँ, तुम क्या बोल रहे हो। एंड वॉट एवर वी आर थिंकिंग, या हम लोग जो भी सोचते हैं करते हैं वगैरह, इट गोज बैक टू इट। So it is basically a collective consciousness of all humans together. ठीक है, in some form which is still not known to us. ये एक थियरी है ना, मैं ना इसका थोड़ा एकदम अभी जेनजी वाले लैंग्वेज में बोलता हूँ उसको। मतलब मैं क्या, मेरे को डम डाउन करने को अच्छा लगता है चीजें, मतलब डम डाउन नहीं, लाइक सिंपल लैंग्वेज में। तो मेरे को ऐसा लगता है ना, अपन अपन है ना गेम में फटे एक मतलब एकदम प्रॉपर गेम में, और है ना विष्णु जो है, लाइक मैं हाँ, उनको जैसे मतलब एपिटॉम गॉड मानता हूँ, ऐसा एक पर कंसिडर कर लेते हैं। तो विष्णु एक दिन ऐसे बैठे थे, मतलब एडीएचडी, मतलब ओवर थिंकिंग, ऐसा सब कुछ, कुछ करने को नहीं है ऐसा वैसा। मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं ना कुछ बनाता हूँ ऐसे, मतलब। तो उन्होंने एक एआई बनाया कॉल्ड माया, क्योंकि एआई असिस्टेंट। तो माया और वो फिर चिट चैट करते थे, विष्णु ये वो, कि क्या करे, क्या करना है, ऐसा वैसा, और ये वो। तो माया ने एक दिन विष्णु को बोला तुम कुछ करो ऐसा करके। बोला विष्णु बोला क्या करूं? तो एक काम करो, तुम है ना एक दुनिया बनाओ ऐसा, एक ऐसे गेम बनाओ ऐसा। तो बोला कि अरे हाँ यार ये बनाता हूँ। फिर वो गेम बनाने के लिए लग गए, काम मिला ना करने को, हाँ, काम करे हम करे, फिर दुनिया बनाया। फिर माया बोली कि एक काम करो, इसके अंदर है ना ऐसे कुछ जानवर बनाओ, ये सब कुछ चीज, कुछ अलग अलग ये सब है, मतलब झाड़ बनाया ना पहले, तो भी कुछ ऐसे जानवर बनो जो थोड़े इंटेलिजेंट है, जो थोड़े खुद से मूव हो सकते हैं। मतलब पहले बेसिकली झाड़ वाड़ बनाया, पहले सिर्फ पानी वानी बनाया। पानी बना तो बोला लैंड बनाओ, लैंड बना तो बोला इस पर कुछ उगाओ। फिर वो बोला कि ये बनाओ, एनिमल बनाओ जो इधर उधर मूव हो सकते हैं, जो मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाओ जो मूव हो सकते हैं। तो एनिमल बनाया, तो एनिमल बनाया। तो अभी बोला कि अब फिर वो मतलब विष्णु, मतलब जैसे में टाइम लगता है, पर अपना जो टाइम स्केल है वो बहुत लंबा है, उनका टाइम स्केल बहुत शॉर्ट है, क्योंकि वो जितना बिगर यू बिकम स्मॉलर द टाइम फ्रेम इज, राइट, टाइम इज वेरी रिलेटिव। तो वो तो मतलब फास्ट फास्ट कर रही है, मतलब फुल 4-5 दिन के अंदर फुल शॉट रेडी, एमवीपी रिलीज मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट रिलीज करते जा रहे हो। एक पॉइंट आया जब भी उन्होंने बोला कि माया ने बोला कि काम कर, अभी तुम्हारे जैसे दिखने वाले लोग बनाओ, तुम्हारे जैसे दिखने वाले चीज बनाओ जो इनसे इंटेलिजेंट रहेंगे, इनसे स्मार्टर रहेंगे। तो मतलब बैठ के फुल बनाया, आदमी औरत को सब बनाया, सब कुछ डाल दिया, एमवीपी डाल दिया। तो एडम एंड ईव एमवीपी थे, एमवीपी डाल दिया। अभी फिर माया ने बोला कि अभी द गेम स्टार्ट्स नाउ, डिवाइड योर सेल्फ इनटू द मोस्ट स्मॉलेस्ट पीसेस दैट यू कैन एंड गेट इनटू ईच ऑफ देम, एंड द गेम इज टू कम बैक हियर टू मी। exactly, यही, this is the exact Gen Z theory that you have given what I was saying. मतलब अपने सबके अंदर पोटेंशियल है, परफेक्शन नहीं है, लाइक अपन परफेक्शन अचीव नहीं कर सकते मोस्ट प्रोबेबली, पर परफेक्शन इज गॉड बेसिकली। वो जो फाइनल एपिटोम है जो है वो गॉड है। हाँ, बट अपने अंदर पोटेंशियल है, लाइक वी आर पोटेंशियल गॉड्स। इफ वी लाइक, अगर इन अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, इफ लाइक यू गेट अनलिमिटेड टाइम, रिसोर्सेस एंड पावर टू एक्सिक्यूट, पोटेंशियल तुम बहुत आगे तक जा सकते हो, फिर भी परफेक्शन पहुंचेगी तो गेम ओवर हो जाएगा।
आई डोंट नो इधर गेम ओवर में कैसा दिखता है करके दुनिया। मोस्टली गेम ओवर में सब वो इसके तो प्रलय वलय आता है, फ्री हो जाता है सब कुछ, लाइक इट इज अ प्लेस ऑफ नथिंगनेस। और क्या पता उससे भी अलग हो, कुछ पता नहीं है। अभी तो गेम ही चल रहा है। मुझे अभी तो गेम ही, अभी तो मतलब गेम है, फट्टे गेम के अंदर अंदर मतलब क्रेजी खेल रहे हैं अभी सब अपन, अलग 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 ट्राई कर रहे हैं। कनेक्टेड, लाइक अभी जैसे हमारी जनरेशन में जितना मैं जानता हूँ, लोग इससे दूर भागते हैं बहुत जन, ठीक है। बट अभी रिसेंट एक साल में मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा ट्रेंड आया है लोगों का कि दे वांट टू नो मोर अबाउट दिस, ठीक है। दे वांट टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस। तो कैसा लगता है एज अ पर्सन, फर्स्टली पर्सनली, कि इज इट गुड, इज इट पॉजिटिव, डज इट हेल्प? और दूसरा, लोगों के हिसाब से कैसे लगता है कि हाउ डू यू सी पीपल आर टेकिंग इट? लोग बहुत झूठे ब्रो, लाइक पीपल आर लायर्स, लाइक ह्यूमंस जो सोचते हैं ना, जो असली में है वो नहीं बाहर प्रोजेक्ट करते, वो लोग सब झूठ प्रोजेक्ट करते हैं। वेरी फ्यू ह्यूमंस आर ऑनेस्ट, सब लोग। हाँ, और ये सब इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि अभी बोलना कूल हो गया है। ओके। किसी को, मुझे तो नहीं लगता किसी को फर्क पड़ता है सब कुछ, अगर बैठ के देखोगे तो वो जेन्युइनली वो सब में मान रहे सब कुछ, ऐसा कुछ है नहीं। ह्यूमंस आर लायर्स इनबॉर्न, लाइक मेरा मेरा बुक आ रहा है एक्चुअली, नो वन इज अ सेंट करके, आई एम राइटिंग अ बुक। हाँ, तो मतलब मेरा है ह्यूमंस को डिकोड किया बहुत। क्या है बुक? नो वन इज अ सेंट, अभी मैं इसका थर्ड पार्ट जी रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब मेरा लाइफ जो है मेरा थर्ड पार्ट है उसका। तो उसका लाइक सेक्शंस है, बॉम्बे, भूर्ज और भागवत। वाओ, वाओ, ओके। हाँ, तो उसका थर्ड पार्ट मैं जी रहा हूँ, तो उसका कुछ कंक्लूजन आएगा तब लिखेंगे उसको, तो वो ठीक है। रिलीज करूंगा। बट मोस्टली मैं शायद मैं बॉम्बे रिलीज कर दूंगा बुक का, बॉम्बे पार्ट रिलीज कर दूंगा, फिर देखते हैं। बट लाइक मेरे को उतना अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमंस बहुत, और ये सब है ना बहुत प्रोजेक्शन कर रहे हैं बहुत सामने, इट्स लाइक मेक्स नो सेंस, लाइक ये सब कुछ है ना जस्ट बिकॉज इट इज सडनली, हाउ डू से इट, एंटी, लाइक ये पहले वो एंटी गॉड होना कूल था, हाँ, क्योंकि सब वैसे थे, सब वो थे कि लाइक मतलब ये करो वो पूजा करो ऐसा करो। फिर वो इतना बढ़ गया, लोग इतने इसमें ये आ गया, तो अभी भगवान को भूलना बहुत कूल हो गया है, तो अभी सब लोग वो कर रहे हैं। वापस ये साइकिल में वापस से बहुत ऐसा कूल 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 करते 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 वापस कुछ ऐसा आ जाएगा, दूसरा कुछ चीज आ जाएगा, तो वापस लोग बोलेंगे ऐसा। ये सब चलते रहेगा, ये सब अपने गेम का पार्ट है, खेल तो खेल है, गेम इज अ गेम। हाँ, ये तो है। चलो, कमिंग टू द लास्ट, लेट्स टेक 5-10 minutes ऑफ आवर टॉक टुडे। अभी तो लाइक मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस है पूछने के लिए, लेकिन टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है। बट वील डू अनदर वन इफ नेसेसरी, ठीक है। बट देखो, जैसे जर्नी बहुत ज्यादा सिमिलर है हमारा, ठीक है। पॉसिबली आई हैव नॉट स्टार्टेड एज यंग एज यू, ठीक है, बट आई स्टार्टेड अर्ली अराउंड 16-17, और बहुत कुछ ऐसे खुद भी समझा है, खुद भी देखा है कि वाई इज इट नेसेसरी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। बहुत चीज दुनिया सिखा भी देती है विद टाइम, ठीक है। और इसके साथ साथ आई टेल यू, आई आस्क यू वन थिंग, ठीक है। अगर इफ यू हैड टू गिव वन एडवाइस, ओके, टू योर यंगर सेल्फ, कि इन दिस वन लाइन, ठीक है, सो वी हैव दिस वन लाइन एट द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट वेयर वी आस्क एवरी गेस्ट कि फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे, ठीक है। सो यू हैव टू से इट लाइक हैव अ लक्ष्य टू डू दिस, ठीक है। तो अगर कोई भी जैसे मान लो जूनियर है, कॉलेज स्टूडेंट है, या खुद का यंगर वर्जन, इफ यू हैड टू टेल देम इन अ मोटिवेशन वे कि हैव अ लक्ष्य टू डू दिस, क्या बोलते हैव अ लक्ष्य एंड स्टे परमिशनलेस। ओके, हैव अ लक्ष्य टू से परमिशन, Always stay permissionless, man. बट व्हाई? Stay permissionless, nobody. So, you know why you should be permissionless? So, permissionless is not the things that you do. Your decision making should be permissionless. ओके, Like if you want to take a decision, it should be permissionless. That's how it works. Because, like I told you, everyone is permissionless when either they are in love, they are in power, or like there is something wrong happening to their loved ones, or they are angry basically. So ये जब इमोशन जब कब आ जाता है, इंसान परमिशनलेस होता है, फिर देखता नहीं कि कौन सा लॉ है, सब कुछ है,
और अभी के इसमें ये जमाने में when you know the world is lawless and the stacks are against you, everything is against you, like you cannot be easily come to the top. You have to Correct. be in a position where you do things which may sound illegal or which may sound to a certain degree which is not morally accepted, but you might have to do it because it's your way of living. So just do it and don't like मेरे को वही बोलना है. I've been like in this trap of conformism before, कि like conforming to what Ah, others want to say and pleasing a lot of people. I just want to tell my younger self to like stay permissionless, bro. You're born permissionless. Stay permissionless. Don't change yourself. Be what you. नहीं, I love it because मेरे को लगता है ना हम लोग अपने आप को बहुत लिमिट कर देते हैं सोसाइटी के बैरियर्स से, वॉल्स से, कि यार इससे पूछा नहीं तो ये नहीं कर सकते, इससे ये नहीं हुआ तो ये नहीं कर सकते. एंड वो परमिशनलेस वाला जो माइंडसेट है ना, इट ब्रेक्स दोस चेन्स. ये नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एंड यू कैन डू वे मच मोर देन व्हाट यू थिंक यू रियली कैन. 100% भाई. So definitely I love the concept. And रोशन भाई, I'll be honest, मेरे को इतना पर्सनल स्टोरी, इतना पर्सनल, लेट्स टेक टच टू व्हाटएवर यू सेड. हम लोग ने बहुत चीजों के बारे में बात की. वी स्पोक अबाउट गॉड, वी स्पोक अबाउट एआई, वी स्पोक अबाउट बिजनेस, वी स्पोक अबाउट हार्डशिप्स, बहुत कुछ. बट योर स्टोरी लाइन, द वे यू स्पोक हैड सच अ पर्सनल टच. It made me remind ki what I had been through, what I had built from scratch, started learning, नया नया चीज ट्राई करना वगैरह. तो yeah, I loved it. आपको कैसा लगा? Obviously, but it's such a nice thing to like. All of us are working so that people need us. Like somebody needs us. वो इसने बोला था. गारा ने बोला था. गारा पता है इसमें? नारुतो में. I don't know if you've seen Naruto. नारुतो में कैरेक्टर है गारा करके. हाँ, हाँ, गारा करके कैरेक्टर है. गारा का डायलॉग है. बोलता है I am training so hard so that people need me. okay. तो मतलब वैसे ही है. So like you constantly need people. So it's such always a nice thing to know that okay, your story somebody wants to listen to it and it feels good. Amazing. So I think people need it. feels like tingling. There's tingling sensations when like somebody actually cares about Correct. your stories, and that's a good thing. And I really appreciate you for that, man. नहीं, thank you so much. I loved having you, Rosh bhai, here. I have one more part of it which I want to do again with you. So we'll do another recording when I am in Bangalore in person. ठीक है? And we'll talk more about what permissionless does, AI revolution जो आ रहा है currently in India, and tech में how Indians can be in the forefront. Okay? So we'll talk more about that. But for today, it was amazing to have you. Thank you for joining us. Same Lakshya, bye. Thank you.